Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know, that we are doing the syllabus of internal assignment B1. Our subject is English grammar, and in today's video, I will explain you lesson 18, and the topic of the lesson is phrases and clauses. So, to understand phrases and clauses, you have to watch this full video. So, let's get started. First is phrase. So, what is a phrase? A phrase is a group of words that does not make a complete sense बाय इटसेल्फ. जो एक फ्रेज होती है वो शब्दों का ऐसा समूह होती है जिसका कोई पूरा अर्थ नहीं होता है. इट हैज़ सम मीनिंग, कुछ तो अर्थ होता है, बट इट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस, पूरा अर्थ नहीं होता है. इट डज नॉट हैव अ फिनिट वर्ब और अ सब्जेक्ट. समटाइम्स इट डज नॉट हैव अ फिनिट वर्ब, कभी कभी इसमें वर्ब नहीं होती है, एंड समटाइम्स द सब्जेक्ट इज मिसिंग. सो दैट्स वाई इट इज अ फ्रेज, बिकॉज इफ वर्ब इज नॉट देयर देन देयर विल नॉट बी अ complete sentence. If subject is missing then also the sentence will not be completed. That's why phrases जो होती हैं वो शब्दों का ऐसा समूह होती हैं जिनका पूरा अर्थ नहीं निकलता है. So let's see the examples of phrases. First is I love eating chocolates. So here eating chocolates. Eating is verb and chocolate is object. So here no subject is there. If I'll say eating chocolate. Second is the boy goes swimming every day. जो लड़का है वो डेली तैरने के लिए जाता है. So swimming every day, that is also not making a complete sense. So how many types of phrases are there? There are three kinds of phrases. First is noun phrase, second adjective phrase, and third is adverb phrase. नाउन फ्रेज होती है, एडजेक्टिव फ्रेज होती है, एंड एडवर्ब फ्रेज होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट नाउन फ्रेज. So noun phrases perform the function of a noun in a sentence. Noun phrases जो होती हैं they obviously perform the function of a noun in a sentence. एक वाक्य में वो संज्ञा का ही perform करती हैं function. A noun phrase can be the subject. Subject भी हो सकती है noun phrase. It can be the object of the verb also, and it can be the object of the preposition also, and it can be the complement in a sentence also. So जो noun phrases होती हैं they are also a group of words. They perform the function of a noun in a sentence. They can be a subject, they can be an object of the verb, and they can be an object of the preposition also, and sometimes they can be the complement in a sentence. Complement is clear to all of you, which I have already explained you. So let's see the examples of noun phrases. First is the box of gold the box of gold was found by a fisherman. जो बॉक्स ऑफ गोल्ड है यानी सोने का जो बॉक्स है वो किसके द्वारा पाया गया? एक फिशरमैन के द्वारा. सो हेयर द बॉक्स ऑफ गोल्ड इज गिवन इन बोल्ड लेटर्स, सो दैट्स व्हाई इट इज नाउन फ्रेज एंड इट इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट. द बॉक्स बोल्ड किसके बारे में बात हो रही, सॉरी द बॉक्स ऑफ गोल्ड किसके बारे में बात हो रही है? सोने के बॉक्स के बारे में. सो हेयर इट इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट. सेकेंड इज चिल्ड्रन लव प्लेइंग विद डॉल्स. बच्चों को गुड़ियों के साथ खेलना पसंद है. सो चिल्ड्रन सब्जेक्ट, लव वर्ब, and what they love playing with dolls. So here playing with dolls is is acting as an object, or it is also beginning with a gerund. Third is there are many bundles of hay in a barn. So in this one sentence what is noun phrase? The noun phrase is many bundles of hay, यानी भूसे के बहुत सारे बंडल्स. बान मीन्स होता है कोठरी. सो कोठरी में बहुत सारे भूसे के बंडल्स हैं. सो हेयर इट इज परफॉर्मिंग एज it is acting as complement of a sentence. Okay, so that is noun phrase. Noun phrase आपका subject की तरह भी work कर सकता है, object की तरह भी कर सकता है, and it can also perform the function of complement of a sentence also. So let's see the next type of phrase. The second type of phrase is adjective phrase. So adjective phrases modify the noun in a sentence. Obviously like an adjective modifies the noun in a sentence. जिस तरीके से एक जो विशेषण होता है वो संज्ञा की विशेषता बताता है, वैसे ही जो adjective phrases होती हैं वो क्या करती हैं? संज्ञा को ही modify करती हैं सेंटेंस में. But only the difference is that here adjective phrase means it will not be single. Adjective आपका single नहीं होगा, it will be with some other words also. So adjective phrases noun को modify करती हैं. They perform the function of an adjective and usually come immediately after the noun they qualify. ये adjective का function perform करती हैं और अक्सर ये जिस भी संज्ञा को modify कर रही हैं, जिस noun को, उसके तुरंत बाद इनका use किया जाता है. Means obviously they tell the quality and they modify a noun
So after that noun only the adjective phrase is used in a sentence. Let's see the example. First is the man with the scar on his arm is detective. जो आदमी है जिसके हाथों पर स्कार्स निशान है वो एक डिटेक्टिव है. So here the man is a noun and what is adjective phrase? With the scar on his arm. क्योंकि किसकी आर्म पर स्कार है? मैन की. सो यहाँ पर मैन आपका नाउन है और नाउन के तुरंत बाद आपकी एडजेक्टिव फ्रेज आई है विद द स्कार ऑन हिज आर्म. सेकेंड इज द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस इज आर क्लास मॉनिटर. ब्लू ड्रेस में जो लड़की है वो हमारी क्लास मॉनिटर है. सो हेयर द गर्ल इज अ नाउन और उसके तुरंत बाद आया इन द ब्लू ड्रेस. कौन सी लड़की? जो ब्लू ड्रेस में है वो हमारे क्लास की मॉनिटर है. नेक्स्ट इज ही लिव्स इन अ हाउस बिल्ड विद अडोब ब्रिक्स. वो एक ऐसे घर में रहता है जो कच्ची, अडोब ब्रिक्स मीन्स होता है कच्ची ईंटों से बना हुआ है. ओके, सो ही लिव्स इन अ हाउस. हाउस क्या है आपका? नाउन है और हाउस की ही क्वालिटी यहाँ बता रहा है कि किससे बना हुआ है? कच्ची ईंटों से बना हुआ है. सो एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या करती हैं? दे मॉडिफाई द नाउन इन अ सेंटेंस एंड दे आर यूज्ड immediately after the noun about which noun they are telling. Next type of phrase is adverb phrase. So adverb phrases, what adverb phrases do? Adverb phrases modify the verb, the adjective or another adverb in a sentence. The same function of adverb verbs are phrases are there, not verbs. जैसे कि आपके जो एडवर्ब्स होते हैं दे मॉडिफाइज द वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अनदर एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस. वैसे ही जो एडवर्ब्स का ग्रुप होता है वो या तो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और या फिर ये दूसरे एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई कर सकता है इन अ सेंटेंस. लेट्स सी द एग्जांपल्स. फर्स्ट इज ही डांस्ड इन अ ग्रेसफुल मैनर. डांस्ड, उसने कैसा डांस किया? इन अ ग्रेसफुल मैनर, बहुत ग्रेसफुली डांस किया. सो इट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर. एडवर्ब तब होता इफ वी विल राइट ग्रेसफुली. सो सिंगल होता दैट टाइम इट विल बी एडवर्ब. यहाँ इन अ ग्रेसफुल मैनर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये एडवर्ब है. सो यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर पता चल रहा है कि किस तरीके से उसने डांस किया, उसने बहुत ग्रेसफुली डांस किया. सेकेंड इज शी लेफ्ट द स्टेज आफ्टर द परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस के बाद उसने स्टेज से चली गई वो. सो इट इज एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम व्हेन शी लेफ्ट आफ्टर द परफॉर्मेंस. थर्ड इज रणधीर लिव्स नियर हिज ऑफिस. रणधीर अपने उसके ऑफिस के पास रहता है. सो इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. नियर हिज ऑफिस, नियर मीन्स पास में. द कार ड्रोव पास्ट मी एट ग्रेट स्पीड. जो कार थी वो बहुत तेजी से चलती हुई मेरे पास से गुजर कर गई. सो इट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री बिकॉज हेयर इट इज टेलिंग द इंटेंसिटी ऑफ द एक्शन दैट द कार ड्रोव, बहुत तेजी से चलती हुई गई. माई फैमिली गोज फॉर अ हॉलीडे टू द सी साइड ट्वाइस अ ईयर. मेरी फैमिली जो है वो हॉलीडे पर जाती है. सी साइड मीन्स समुद्र के किनारे 2 साल में एक बार. सो इट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बिकॉज इट इज टेलिंग दैट हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड. ट्वाइस अ ईयर मतलब 2 बार हो रहा है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पता चल रही है. सो इट इज एडवर्ब फ्रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट इज आई वोर अ थिक पुलोवर फॉर वार्मथ. मैंने पुलोवर इट्स अ टाइप ऑफ अ स्वेटर, मैंने एक मोटा स्वेटर पहना गर्मी के लिए. सो इट इज एडवर्ब ऑफ रीजन. वाई आई वोर अ थिक पुलोवर फॉर वार्मथ, गर्माहट के लिए पहना. सो दैट इज एडवर्ब ऑफ रीजन. सो सेम फंक्शंस आर देयर. एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम इज टेलिंग अबाउट टाइम, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस is telling about the place, adverb phrase of degree is telling about the intensity of the action, and adverb phrase of frequency is telling about that how many times the action is being performed, and then our adverb phrase of reason, it is telling why the action is being performed, क्यों किया जा रहा है perform, उसका reason क्या है. So these are the types of phrases. Let's see the next topic. So till now I have explained you about phrases, that phrases are a group of words which have some meaning but does not make complete sense. phrase जो होती हैं वो शब्दों का समूह होती हैं जिनका कुछ अर्थ होता है लेकिन कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है. समटाइम्स दे डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट, समटाइम्स दे डू नॉट हैव अ वर्ब. नाउ व्हाट आर क्लॉसेस? सो अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन. क्लॉसेस भी आप जो क्लॉज होती है वो भी आपकी एक शब्दों का समूह होती है. उसमें आपका सब्जेक्ट भी होता है और अपना एक वर्ब भी होता है. इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और इट कैन बी अ सेंटेंस इन इटसेल्फ. सो ये एक आपके वाक्य का पार्ट भी हो सकता है, मीन्स आपका जो सेंटेंस है उसका एक पार्ट भी हो सकता है और ये अपने आप में ही पूरा सेंटेंस भी हो सकता है. सो एग्जाम्पल इज गिवन. इट इज़ द ट्रूथ दैट गर्ल्स एंड बॉयज़ आर इक्वल. इट इज़ द ट्रूथ, ये सच है कि लड़के और लड़कियां इक्वल हैं. सो हेयर दैट गर्ल्स एंड बॉयज़ आर इक्वल,
यहाँ पर इक्वल आपका वर्ब हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, द गर्ल्स एंड बॉयज सब्जेक्ट हो गया, सो इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑल्सो। नेक्स्ट इज द गर्ल हु इज वियरिंग द ब्लू ड्रेस इज माई सिस्टर, वो लड़की जो ब्लू ड्रेस पहनी है वो मेरी सिस्टर है। सो हेयर व्हाट इज क्लॉज, हु इज वियरिंग द ब्लू ड्रेस, जो ब्लू ड्रेस पहनी है। सो ये भी आपकी क्लॉज हो गई। द डॉक्टर अराइव्ड आफ्टर वी हैड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स, डॉक्टर तब आए जब हमने उन्हें कई बार बुलाया। सो हेयर आफ्टर वी कॉल्ड हिम, आफ्टर वी हैड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स, तो आपकी ये क्लॉसेज हो गई जिनमें सब्जेक्ट भी है, वी आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड कॉल्ड आपका वर्ब हो गया, सेवरल टाइम्स भी है आपका। सो इन ग्रामर बाइट इट इज रिटन, रिमेंबर दैट अ सेंटेंस इज ऑल्सो अ मेन क्लॉज, जो आपका सेंटेंस होता है वो मेन क्लॉज होता है। दैट आई विल एक्सप्लेन दैट व्हाट इज मेन क्लॉज एंड व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो क्लॉसेज क्लियर हो गया दैट क्लॉसेज आर ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ, are also groups of words. They have a sentence subject also, they have verb also, they can be a sentence or they can be a part of a sentence. Okay, now clauses can be of two types, that is dependent clause and independent clause. So dependent means जो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, and independent जो अपने ऊपर निर्भर होता है, जो आत्मनिर्भर होता है। Clauses that make complete sense on their own are called independent or मेन क्लॉसेज। ऐसी क्लॉसेज जो अपने आप में अपना अर्थ कंप्लीट करती हैं, पूरा अर्थ रखती हैं, उनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं और मेन क्लॉज भी कहते हैं। लुक एट द सेंटेंस, रमा वॉज टेकिंग फोटोज एंड गीतांजलि वॉज पेंटिंग, रमा फोटोज ले रही थी और गीतांजलि पेंटिंग कर रही थी। सो द अबव सेंटेंस कंटेन्स टू क्लॉसेज, यहाँ पर टू क्लॉसेज हैं, दैट रमा वॉज टेकिंग फोटोज एंड गीतांजलि वॉज पेंटिंग। रमा यहाँ आपका सब्जेक्ट हो गया, टेकिंग फोटोज आपका वर्ब हो गया, एंड गीतांजलि सब्जेक्ट हो गया, पेंटिंग आपका वर्ब हो गया। सो दे बोथ आर क्लॉसेज, ओके, एंड दे आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड, और ये दोनों क्लॉसेज किससे जुड़ी हुई हैं, ये दोनों क्लॉसेज आपकी एंड से जुड़ी हुई हैं। दे बोथ मेक कंप्लीट सेंस ऑन देयर ओन एंड हैंस आर मेन क्लॉसेज। इफ वी विल सेपरेट देम दे बोथ विल मेक कंप्लीट सेंस। रमा वॉज टेकिंग फोटोज, ओके, गीतांजलि वॉज पेंटिंग। सो अगर हम इन्हें अलग कर देंगे दोनों का अपना अपना अर्थ आएगा, और इसीलिए ये आपकी कौन सी क्लॉज है, मेन क्लॉज है। मेन क्लॉसेज आर यूजुअली जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। मेन क्लॉसेज जो होती हैं अक्सर वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि आपके होते हैं एंड, बट, और, फॉर, नॉर, येट एंड सो, और बाय कोरिलेटिव कंजक्शंस। इसके अलावा कोरिलेटिव कंजक्शन से भी जुड़ सकती हैं, लाइक आइदर और, नाइदर नॉर, टू फॉर्म कंपाउंड सेंटेंस। जब हम कंपाउंड सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेज आर द सेंटेंसेज विच हैव टू मेन क्लॉसेज, जिनमें दो मेन क्लॉज होती हैं। नेक्स्ट आती है आपकी डिपेंडेंट क्लॉज, क्लॉसेज दैट कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस ऑन देयर ओन। ऐसी क्लॉसेज जो अपने आप में अपना पूरा अर्थ नहीं रखती हैं, एंड डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज टू मेक देयर मीनिंग कंप्लीट, और उन्हें अपना अर्थ पूरा करने के लिए मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ऐसी क्लॉसेज को हम डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल देख लीजिए, यू आर ऑलरेडी अ चैंपियन इन माई आईज, तुम पहले से ही मेरी नज़रों में एक हीरो हो, चैंपियन हो, विजेता हो। वेदर यू विन द कॉम्पिटिशन और नॉट, सो हेयर यू आर ऑलरेडी अ चैंपियन इन माई आईज, दैट इज मेन क्लॉज, तुम पहले से ही मेरी नज़रों में विजेता हो। वेदर यू विन द कॉम्पिटिशन और नॉट, चाहे तुम कॉम्पिटिशन जीतो या ना जीतो, सो इट इज़ सबऑर्डिनेट क्लॉज, बिकॉज इसका कोई मीनिंग अपने आप में नहीं है। हेयर द वर्ड्स इन बोल्ड फॉर्म अ डिपेंडेंट क्लॉज, जैसे कि मैंने आपको बताया जो बोल्ड में दिए हैं दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज। द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स फॉर्म एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो स्टार्टिंग में आपके वर्ड्स हैं, बचे हुए सेंटेंस है, वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो डिपेंडेंट क्लॉजेज आर यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। डिपेंडेंट क्लॉज जो होती हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती हैं, उनको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो यहाँ पर आपका वेदर जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, जैसे बिकॉज, ऑल्दो, दो, व्हेन एंड बिफोर, or by relative pronoun, and with that they can be introduced by relative pronouns also sometimes, that is that, which, who, whom and whose. So there are two types of clauses. First is independent clause which makes complete sentence on its own, and second is dependent clause which does not make complete sense on its own, and it is dependent on the independent clause. So let's see the next topic. Now the next topic is types of clauses.
काइंड्स ऑफ क्लॉसेस मैंने आपको बता दिया कि कितने प्रकार की होती हैं, दैट टू काइंड्स। एंड अभी हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे। क्लॉसेस कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। सो नाउन क्लॉज जो होती हैं हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दैट। नाउन क्लॉसेस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन क्लॉसेस ऑब्वियसली नाउन का फंक्शन ही परफॉर्म करती हैं। दे यूजुअली एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस में ये सब्जेक्ट की तरह वर्क कर सकती हैं, और द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह भी परफॉर्म कर सकती हैं फंक्शन। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ऑल्सो, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन भी हो सकती है। एंड दे कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस, और एक सेंटेंस में ये कॉम्प्लीमेंट की तरह भी वर्क कर सकती हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। द फर्स्ट वन इज दैट ही इज इरिटेटिंग इज ट्रू, कि वो इरिटेटिंग है ये सच है। सो हियर इट इज सब्जेक्ट, ही इज इरिटेटिंग आपका सब्जेक्ट आ रहा है ही इसमें। आई एम श्योर दैट शी इज केपेबल ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, मैं इस बात में श्योर हूँ कि वो अपना प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट कर पाने में केपेबल है। सो हेयर शी आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ किस तरह यूज हो रहा है इसका, ऑब्जेक्ट का। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, बट मैं किस बात को लेकर श्योर हूँ, दैट शी इज केपेबल टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। पीयूष प्रॉब्लम वॉज दैट ही हैड मिस्ड द लास्ट बस टू द सिटी। सो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट की तरह वर्क कर रहा है। पीयूष की प्रॉब्लम क्या है, दैट कि उसने जो बस है वो मिस्ड कर दी, लास्ट बस जो है। सो इट इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट हेयर। ग्रामर बाइट में देख लीजिए, नाउन क्लॉसेज आर यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय, नाउन क्लॉसेज जो होती हैं वो यूजुअली इंट्रोड्यूस की जाती हैं दैट, इफ, वाई, हाउ, वॉट एवर, वैन, वेयर, वेदर, विच एवर, हु एवर, होम और होम एवर। नेक्स्ट आती हैं आपकी एडजेक्टिव क्लॉसेज। सो एडजेक्टिव क्लॉसेज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। सो एडजेक्टिव क्लॉसेज जो होती हैं वो एक सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह परफॉर्म करती हैं फंक्शन। दे मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन इन द मेन क्लॉज। जो मेन क्लॉज होती है यानी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसमें ये क्या करती हैं, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करती हैं। एडजेक्टिव क्लॉसेज आर प्रेसिडेड बाय रिलेटिव प्रोनाउन, और एडजेक्टिव क्लॉसेज जो होती हैं वो अक्सर आपकी रिलेटिव प्रोनाउन को फॉलो करती हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, हुज, होम, विच, दैट, और एडवर्ब्स लाइक व्हेन, वेयर। सो फर्स्ट एग्जांपल है ही इज द किंग हु लिव्स इन अ ग्लास पैलेस, ये वो राजा है जो ग्लास पैलेस में रहता है। सेकंड, दिस इज द टाउन वेयर आई वॉज बोर्न, ये वो शहर है जहां पर मैं पैदा हुआ था। सो हु इज ऑल्सो रिलेटिव प्रोनाउन, एंड सेकंड वेयर इज एडवर्ब। सो एग्जाम्पल इज गिवन, द गर्ल हु इज वियरिंग अ फर कोट लिव्स इन शिलोंग, वो लड़की जो फर कोट पहनी हुई है वो शिलोंग में रहती है। सो द गर्ल इज नाउन, मेन क्लॉज में हमारी जो मेन क्लॉज है वो है द गर्ल हु इज वियरिंग अ फर कोट, वो लड़की जो फर कोट पहनी हुई है। सो यहाँ पर गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, क्या है गर्ल पहनी हुई, फर कोट पहनी है। नेक्स्ट है माई फर्स्ट कजिन होम आई लव इज लीविंग टू द सिटी टुमारो, मेरी फर्स्ट कजिन जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ वो कल शहर छोड़कर जा रही है। सो माई फर्स्ट कजिन इज द सब्जेक्ट, कौन सी, होम आई लव, जिसको मैं प्यार करता हूँ। सो होम यहाँ पर आपका क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉज। नेक्स्ट क्लॉज आपकी है एडवर्ब क्लॉज। सो एडवर्ब क्लॉसेज मॉडिफाई द वर्ब, द एडजेक्टिव और द अनदर एडवर्ब इन द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में जो आपकी एडवर्ब होती हैं वो क्या करती हैं, एडवर्ब फ्रेज किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती हैं, वर्ब को मॉडिफाई करती हैं, या फिर किसी और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती हैं। द फर्स्ट वन इज द डॉक्टर अराइव्ड बिफोर द एम्बुलेंस लेफ्ट, डॉक्टर आया इससे पहले कि एम्बुलेंस चली जाती। सो हेयर एडवर्ब क्या है आपका, द डॉक्टर अराइव्ड, यहाँ एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, अराइव्ड को, कि कब आया डॉक्टर, इससे पहले कि एम्बुलेंस के जाने से पहले। नेक्स्ट है द मैच वॉज पोस्टपोन बिकॉज इट वॉज टू हॉट, मैच जो था वो पोस्टपोन हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सो हेयर ऑल्सो इट इज़ मॉडिफाइंग द वर्ब इज पोस्टपोन्ड, कि पोस्टपोन्ड हो गया था, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। द एम्पायर कॉल्ड ऑफ द गेम दो द प्लेयर्स वर विलिंग टू स्टार्ट, कॉल्ड ऑफ मीन्स होता है कैंसिल कर देना, अंपायर ने गेम को कैंसिल कर दिया, हालांकि प्लेयर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा विलिंग थे, खेलने के इच्छुक थे। सो इट इज़ ऑल्सो एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज आपकी वर्क तो एडवर्ब की तरह करती है। टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज आर ऑल्सो गिवन, एडवर्ब क्लॉसेज आर ऑफ वेरियस टाइप्स।
सो पहला आता है हमारा एडवर्ब क्लॉसेज ऑफ मैनर। सो एडवर्ब ऑफ मैनर हमारा क्या बताता है, इट टेल्स हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, किस तरीके से एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है। द सेम फंक्शन is there of adverb clause of manner also. Adverb clause of manner describe how the action in the main clause is performed. main clause में जो action है यानी independent clause में जो action है वो किस तरीके से perform किया जा रहा है। These are introduced by subordinating conjunctions such as like, as, if. इनको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है एडवर्ब क्लॉसेस को, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे होते हैं आपके लाइक, एज, इफ। फर्स्ट एग्जांपल इज ही डिड एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसने वही किया जिसका उसे जो उसे निर्देश दिए गए थे। यहाँ पर एज आपका हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और उसके द्वारा जोड़ा गया कि उसने कैसे किया, उसने वही किया जो उसे इंस्ट्रक्शन में बताया गया था। शी रैन एज इफ हर लाइफ डिपेंडेंट ऑन इट, वो ऐसे भागी जैसे उसकी लाइफ उसी पर निर्भर करती थी। यहाँ भी एज के द्वारा जोड़ा गया है एंड दे बोथ आर टेलिंग दैट हाउ द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड इन द मेन क्लॉज। सेकेंड आता है आपका एडवर्ब क्लॉसेज ऑफ टाइम। Adverb clauses of time describes when the action in the main clause takes place. सेम फंक्शन है adverb clauses of time का भी, ये बताती है कि आपके मेन क्लॉज में एक्शन किस समय पर हो रहा है। These are introduced by subordinating conjunction, और इनको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, इनको भी subordinating conjunctions के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। subordinating conjunction आपके हो गए when, while, before, after, since, as soon as. Let's see the example. First is when the baby saw the colorful ball. जब बच्चे ने कलरफुल बॉल देखी, it reached out for it, और वो उसकी तरफ दौड़ा। when आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, और यहाँ पर ये क्या बता रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है कि कब बच्चा दौड़ा, जब उसने उस बॉल को देखा, कलरफुल बॉल को। शी स्टूड अप टू ग्रीट मी एज सुन एज शी सॉ मी कमिंग, वो खड़ी हो गई मुझे ग्रीट करने के लिए, मुझे बधाई देने के लिए, जैसे ही उसने मुझे आते हुए देखा। इट इज ऑल्सो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कि वो कब खड़ी हुई, जब उसने मुझे आते हुए देखा। लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप। द नेक्स्ट टाइप इफ एडवर्ब द नेक्स्ट टाइप इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। Adverb clause of place describes where the action in the main clause takes place. यहाँ main clause में action जो है वो आपका कहाँ पर हो रहा है ये बताती है। These are introduced by, ये भी आपकी subordinating conjunction के द्वारा ही introduce की जाती हैं, जैसे है आपका where और wherever। एग्जाम्पल है wherever Mary looked, Mary जहाँ पर भी देखती थी, she saw trees and rolling field, उसे वहाँ पर fields और ट्रीज दिखाई देते थे। वेयर एवर यहाँ प्लेस बता रही है कि मैरी कहाँ देख रही है, वेयर एवर जहाँ भी देख रही है। इट इज मॉडिफाइंग द वर्ब। द पार्टी गोअर्स गैदर्ड वेयर देयर वॉज म्यूजिक। पार्टी गोअर्स मीन्स जो पार्टी में जाते हैं वो गैदर हुए, कहाँ पर गैदर हुए, इकट्ठा कहाँ हुए, जहाँ पर म्यूजिक था। इट इज टेलिंग अबाउट द प्लेस कि कहाँ पर इकट्ठा हुए, जहाँ पर म्यूजिक था। नेक्स्ट है आपकी एडवर्ब क्लॉसेज ऑफ रीजन। एडवर्ब क्लॉसेज ऑफ रीजन टेल अस व्हाई द एक्शन इन द मेन क्लॉज ऑकर्ड, ये बताती है कि आपकी जो मेन क्लॉज में एक्शन है वो क्यों हो रहा है। एंड दीज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये भी आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा ही इंट्रोड्यूस की जाती है, बट द कंजक्शंस आर बिकॉज, एज एंड सिंस। एग्जाम्पल है आपका ही पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स बिकॉज ही हैड स्टडीड सिंसरली। हेयर इस फ्रेज का मीनिंग है ही पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, मीन्स अच्छे नंबर से पास हुआ क्योंकि उसने बहुत सिंसियरली स्टडी की थी। वो क्यों अच्छे नंबर से पास हुआ, क्योंकि उसने अच्छी तरह स्टडी की थी। मेन क्लॉज में रीजन बता रहा है। नेक्स्ट है आपका मधुरा स्विच्ड ऑन द एयर कंडीशनर सिंस इट वॉज हॉट। मधुरा ने एयर कंडीशनर मीन्स AC ऑन कर दिया क्योंकि सिंस जब से गर्मी हो गई थी। यहाँ पर रीजन बता रहा है कि क्यों स्विच ऑन किया, जब से गर्मी हुई थी। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, इट इज अ न्यू टॉपिक। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट शो द रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शन इन द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में रिजल्ट दिखाता है, कॉन्सिक्वेंस मीन्स निष्कर्ष दिखाता है। एंड आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, सो दैट एंड सच। द रेन फेल सो हैविली, बारिश इतनी तेज हो रही थी, दैट द रोड्स गॉट फ्लडेड, कि रोड्स पर जो है वो बाढ़ की तरह वो भर गए थे, मीन्स बाढ़ सी आ गई थी। हेयर आपका क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिसके द्वारा यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा है दैट द रोड्स गॉट फ्लडेड। यहाँ पर रिजल्ट पता चल रहा है कि इतनी तेज बारिश हुई और सड़कें जो थी वो बाढ़ की तरह
भर गई थी। द डॉग्स बार्क्ड सो लाउडली, कुत्ते इतनी तेज भौंके, दैट द एंटायर नेबरहुड वोक अप, कि पूरा जो भी नेबरहुड में लोग थे वो सब जाग गए। सो हेयर रिजल्ट पता चल रहा है कि कुत्तों के भौंकने से क्या हुआ, सारे लोग नेबरहुड में जाग गए। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन मींस तुलना करना। सो ये क्या करता है, ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लाइक दैन, एज, सो एंड सो एज। सो ये मेन क्लॉज में दो नाउन और दो या फिर दो प्रोनाउन हो सकते हैं, उनके बीच कंपैरिजन करता है, तुलना करता है। सो एग्जाम्पल है, राजेश इज नो लेस काइंड देन रमेश। राजेश जो है वो रमेश से कम दयालु नहीं है। सो हियर कंपैरिजन इज बिटवीन राजेश एंड रमेश। सेकेंड है, द सेज इज एज वाइज एज टाइम इटसेल्फ। सो सेज मीन्स होता है साधु। द सेज इज एज वाइफ एज टाइम इटसेल्फ। वो इतना ज़्यादा वाइज मीन्स बुद्धिमान, जैसे समय अपने आप में वो एक समय हो, इतना ज़्यादा बुद्धिमान है। सो हेयर इज ऑल्सो अ कंपैरिजन इज देयर। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्ब क्लॉसेज ऑफ कंसेशन। सो व्हाट इज एडवर्ब क्लॉसेज ऑफ कंसेशन? So, adverb clauses of concession are used when the action taking place in the main clause is in opposition to the action in the subordinate clause. Adverb clause of concession कब आता है? जब आपका जो एक्शन होता है मेन प्लेस का वो ऑपोजिशन में होता है, मीन्स बिल्कुल सामने विरोध में खड़ा हुआ होता है। सबऑर्डिनेट मीन्स जो आपका मेन क्लॉज का एक्शन होगा वो बिल्कुल विरोध में होगा जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक्शन है उसके। दे आर इंट्रोड्यूस्ड बाई सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इनको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, सच एज ऑल्दो, दो, इवन, इफ एंड इवन दो। सो ऑल्दो द सन वॉज अप, हालांकि जो सूरज था वो ऊपर था, देयर वॉज डार्कनेस ऑल अराउंड, लेकिन तब भी सब तरफ अंधेरा था। सो हेयर टू एक्शंस दे आर कॉन्ट्रोडिक्शन, दे आर इन कॉन्ट्रोडिक्शन, एक दूसरे के विरोध में है। हालांकि सूरज बिल्कुल ऊपर था, सर पर चढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी चारों तरफ अंधेरा था। नेक्स्ट है, ही मिस्ड द फाइट इवन दो ही लेफ्ट 2 hours एगो। उसने फाइट मिस कर दी, हालांकि वो 2 घंटे पहले ही आ गया था। सो यहाँ कंपैरिजन है कि फाइट मिस तो की और 2 घंटे पहले भी आ गया था। सो यहाँ पर क्या है, ऑपोजिशन है दोनों एक्शन का। सो जब कभी भी जो हमारा मेन क्लॉज का एक्शन होता है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक्शन होता है वो ऑपोजिशन में होते हैं, विरोध में होते हैं, तब आपकी कौन सी क्लॉज यूज की गई होती है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। सो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन एक्सप्लेन on what condition the action suggested in the main clause will occur. These are introduced by subordinating conjunctions like if, unless, in case and provided that. So जो आपका adverb clause of condition होता है वो explain करता है कि किस condition में, कि main clause में किस condition में action को एक्शन के होने की सजेस्ट किया गया है कि किस कंडीशन में एक्शन हो। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा की जाती हैं, लाइक इफ, अनलेस, इन केस एंड प्रोवाइडेड दैट। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल हैव टू रिटर्न होम अर्ली, हमें घर जल्दी जाना पड़ेगा। सो यहाँ पर एक सजेस्ट किया गया है कि मेन क्लॉज कब ऑकर होगी, मीन्स हम मेन क्लॉज क्या है, वी विल हैव टू रिटर्न होम अर्ली, हमें घर जल्दी जाना होगा, बट हमें कब जाना होगा? इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है। नेक्स्ट आता है ही विल गो टू द फिल्म, वो फिल्म देखने जाएगा, प्रोवाइडेड दैट ही फिनिशेज हिज चोर्स, वो फिल्म देखने जाएगा। सो प्रोवाइडेड दैट मीन्स इस शर्त पर, दैट ही फिनिशेज हिज चोर्स, कि वो अपना काम पूरा कर ले। सो यहाँ पर क्या कंडीशन बताई गई है? प्रोवाइडेड मीन्स है इस शर्त पर, कि वो इस शर्त पर फिल्म देखने जाएगा जब वो अपना काम, घर का काम जो है या कोई सा भी काम है वो पूरा कर ले। सो दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ clauses, types of adverb clauses which I have explained. So in today's video I have explained you phrases, types of phrases, clauses, types of clauses. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.